আপনারা দেখছেন বিশ্ববঙ্গ চ্যানেল, মানুষের সাথে মানুষের কাছে। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন বিশ্ববঙ্গ চ্যানেল। সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। জুট এগ্রিকালচার এই কয়েক বছরে কীভাবে উন্নয়ন সাধন করেছেন নানান দিকে, কৃষি এবং পাট শিল্প এবং নানান সামগ্রীতে, সেই নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান ছিল জুট এগ্রিকালচার সাহেব বাগানে। करने की कृपा करें। मिस्टर देवदत्त जी जो नेशनल जूट बोर्ड से आए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर आसीन हो जाएं। हमारी ओर से, हमारे संस्थान की ओर से हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत हमारे अतिथियों का। और मैं चाहूंगा कि हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर गौरव जी हमारे मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत करें। ये फ्लावर बुके सर, these have been made by our self-help group ladies. ऋषिधन पशुधन मानव जीवन दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट। मैं हमारे तकनीकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अतिथियों को सहायता करें दीप प्रज्वलन में। Dignitaries, Dr. Shubhat Gupta ji, Additional Chief Secretary, Government of West Bengal. He was a jute commissioner, and jute is in his heart. Today also just discussed his concept and ideas and strategies to promote the jute sector throughout the world by taking the industry, self-help groups and research organizations. Sir, this is a great opportunity. We welcome you to this, I can say, your institutes, and you are associated with these institutes and activities, and many of the technology like Cryogel Sona, Jute Eye Care projects, it is your brainchild. So thank you, sir. Today we are having with us our Honorable Additional Director General, Seed ICAR, Dr. Jadhav ji. You know how he has made this trip, because
So many times we met, and this institute, he feels that needs special care and attention because it has potential. He went joy on midnight. So it indicates that the person how much devotion and dedication and thinking towards the betterment of farmers and industry, particularly jute and allied fiber sector. So thank you, sir, very much for your এখানে মূলত ট্রাইজাফ হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারা পাট এবং পাটজাত যে সমস্ত দ্রব্য হয় সেগুলো কিভাবে আরও উন্নত করা যায়, পাটের ভ্যারাইটি কীভাবে আরও ভালো করা যায়, তার উৎপাদন কী করে বাড়ানো যায়, এইসব নিয়ে এখানে গবেষণা হয়। তো আজকের যে প্রোগ্রাম, এর লক্ষ্য হলো যে এখানে কৃষকদের, উন্নত প্রগতিশীল কৃষক, তারপরে পাট নিয়ে যে সমস্ত সেলফ হেল্প গ্রুপ কাজ করছেন, ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কাজ করছে, তাদের সাথে যৌথভাবে আলোচনা করা এবং এখানে যে সমস্ত জিনিসের উদ্ভাবন হয়েছে, যে সমস্ত জিনিসের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেগুলো তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত গুপ্ত। क्या कर्मसूची था? आज का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? आज का जो कार्यक्रम जैसे आप लोग देख रहे थे, इसमें मुख्य तौर से जो एक इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप मीट जो हमने आयोजित की कि किस तरह से जो हमारे जो अनुसंधान के कार्य हैं वो एंटरप्रेन्योर्स तक पहुँचे और किस तरह से वो आगे उनके प्रोडक्ट बना के और वो आगे बढ़ें। तो उसी क्रम में जो सारी एक कड़ी, जैसे उत्पादन, किस्म विकास, बीज का उत्पादन, उसकी जो वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, उससे इंडस्ट्री का, एंटरप्रेन्योरशिप का जुड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जुड़ना, स्टार्टअप का जुड़ना, इंक्यूबेटर्स का जुड़ना, और वो जो प्रोडक्ट बनती है उसको किस तरह से आगे मार्केट में लेके जाएं, चाहे वो हम अपने घरेलू मार्केट में विभिन्न संस्थानों से जोड़ के या उसको हम किस तरह से विदेशों में भेज सकें। तो उसी कड़ी में ये आज एक संस्थान का प्रयास था और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, जिसमें हम देख पाए कि किस तरह से संस्थान ने जो विभिन्न उत्पाद बना के, जो विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एंटरप्रेन्योर से, और जो मशीनें हैं हमारा बीज का है, और जो भी अन्य उत्पाद हैं जैसे रेटिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है, हमारी IPM की टेक्नोलॉजी उत्पादन की है, तो उससे किसानों को, एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा और जो लगभग 200 से अधिक जो विभिन्न जो उत्पाद इससे जो बनाए गए फाइबर से, तो उनका जो प्रदर्शन किया गया और उन किसानों से इंटरेक्शन किया गया, वो किस तरह से उत्साहित हैं और कैसे उनको आगे मार्गदर्शन करना है। और इसमें एक विशेष बात ये भी रही कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जो उच्च आप लोगों को लग रहा है कि इससे किसान का फायदा होगा?
निश्चित रूप से इसका जो पूरा प्रयास किसान के फायदे के लिए है। सरकार का जैसे पहले एक प्रयास था कि हम किस तरह से उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादन की तरफ जोर था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से आप देखते हैं किस तरह से किसानों का मुनाफा बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो वो उसी क्रम में है कि अगर मान लो आपकी पैदावार हो गई, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसको मूल्य नहीं मिलता है, तो जो वैल्यू एडिशन करके और छोटी छोटी यूनिट बना के और उसको जब किसान भाई बेचते हैं तो निश्चित रूप से उससे मुनाफा बढ़ता है, किसान की इनकम जो एश्योर्ड होती है। और क्योंकि ये फसल तो एक ऐसी फसल है कि इसके हर जो अंश का जो है कोई न कोई गुण है, तो उस गुण को किस तरह से हम उसको सब्जी के रूप में, रेशे के रूप में, उसको दवाई के रूप में, बायो कंपोस्ट के रूप में, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, और जो एक आज की बात में जिस तरह से जो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें कार्बन क्रेडिट सिक्योर करने की बात करते हैं, तो वो सभी गुण हैं। उसको किस तरह से हम किसानों को बता रहे हैं। यहाँ का जो मेसिनरी तैयारी हो रहा है, इसके लिए कृषक को तो एजुकेशन देना जरूरी है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें जैसे जो MSME मिनिस्ट्री भी साथ में जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल सरकार जुड़ी हुई है, जो नेशनल जूट बोर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें एक ट्रेनिंग का, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो किसानों के लिए ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर खोला गया है। किस तरह से किसान जो बहनें हैं, किसान भाई हैं, वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं तो वो आके यहाँ से ट्रेनिंग ले, और लगभग महीने में जो 20-25 के आसपास मशीनें लगाई हुई हैं, तो 2 बैच ये ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से हम विभिन्न उत्पाद जो इनके बाई प्रोडक्ट हम इससे बनाएं, जिसमें कि आपके हर जो घरेलू यूज के लिए, और किस तरह से प्लास्टिक का एक ये पर्याय है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो वो प्रयास कर रहे हैं, और जो MSME है वो विभिन्न प्रोजेक्ट भी इन एंटरप्रेन्योर्स को, किसान भाइयों को दे रहे हैं, ताकि उससे वो और आगे अपना काम बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा मिले। आपका नाम? मेरा डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। सॉरी थैंक यू। सर बोलिए सर, कैसे लग रहा है सर, कैसे उन्नयन हो रहा है आप समझ रहे हैं जूट एग्रीकल्चर का? देखिए, जूट एग्रीकल्चर की बात करें तो आज सुबह से मैं इस संस्थान में डायरेक्टर साहब के साथ पूरी तकनीक से इनकी समझी हैं, देखी है। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। किसान के साथ जुड़ा होता है, खुद की किसान में पैदावार ज़्यादा हो उसके साथ होता है, और फिर मार्केट के साथ जुड़ा होता है। सर हम लोग देखते हैं हर महीने में गौरंग सर कुछ ना कुछ नया रिलीज़ करते ही रहते हैं। जी जी जी, इसके मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि 3 तरह की चीज़ें हैं। एक, किसान के साथ पीछे जुड़ना कि उसे कैसे हम नई टेक्निक्स दें। दूसरी चीज़, किसान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ कैसे प्रोड्यूस करे और उसके कैसे इनकम ज़्यादा मिले। और उसके लिए तीसरा, मार्केट में सामान सीधा रॉ जूट की तरह जाएगा या उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरह जाएगा। आज अच्छी चीज़ ये है कि क्राइजेफ तीनों मुद्दों पे बराबर से काम कर रहा है। एक तरफ ये किसानों के लिए बहुत अच्छे, चाहे वैरायटी हो, चाहे मैन्योर्स हो, चाहे कंट्रोल हो, चाहे बायो कंट्रोल्स हो, इक्विपमेंट हो, हर तरीके से ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीधे उन चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं ताकि इसमें इंटरेस्ट जुड़े। और तीसरी तरफ, जैसे अभी कहा, नेशनल जूट बोर्ड, MSME, उन संस्थानों के साथ बात करके ये इन सामानों को इंडस्ट्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब इंडस्ट्री में एक नया रुख पैदा होगा ताकि जूट में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। जूट का इंटरेस्ट पैदा होगा तो किसान को फायदा सर होगा। ये लोग ये जूट का जो माल है, ये तो आप बाहर में भी बेच सकता है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? बेसिकली देखिए, वही चीज़ें हैं कि जैसे आज एनवायरमेंटल, हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात, अभी डॉक्टर यादव ने भी आपको बताया कि किस तरीके से हम कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट की तरह जूट खाली हिंदुस्तान में नहीं, बाहर हमसे भी ज़्यादा डिमांड है। और जूट प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं, आपने देखा पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम जूट यहाँ पैदा हो रहा है। हिंदुस्तान के पास क्वालिटी अच्छी है, इसका हमारा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑलरेडी हो रहा है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ बनी है उस तरीके से हमें उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेगा। और इसी चीज़ को समझने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप मीट रखी है कि इंडस्ट्री से आके समझे, इंडस्ट्री आके हमें समझे, और इस मुद्दे से जब हम डायलॉग करेंगे तो इसमें जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता होगा वो निकल के आएगा। और उसके ऊपर संस्थान के साथ हम लोग जो दिल्ली से आए हैं, हमारा काम इनकी टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री ढूंढ के उन तक पहुंचाने का है, वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे। सर जूट नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण मलिक है,
मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक कंपनी है एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, उसका सीईओ हूँ। और हमारा काम ये टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री तक लाइसेंस कराने का है। ধন্যবাদ স্যার। কি বলবেন স্যার? যেমন আজকে আমাদের অনেক সময় আমরা দেখি যে কোনো একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন টেকনোলজি তৈরি করছে, ফার্মারদের কাছে পৌঁছচ্ছে না, এবং ফার্মারদের কাছে পৌঁছচ্ছে না তো ইন্ডাস্ট্রি সাপ্লাই করতে পারছে না। তবে আজকে আমাদের একটা ইন্টারফেস হলো বিজ্ঞানী, চাষি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা কোম্পানিজ আছেন তাদের সম্মিলিতভাবে একটা মিট হলো, যেখানে তারা দেখলেন যে রিসার্চ অর্গানাইজেশন ক্রাইজা কী ধরনের বীজ উদ্ভাবন করেছে,